All right. So yesterday we started off with current electricity chapter और हमने कुछ basics देखा था. Then we defined, not defined really, but okay, we defined what is a junction, we defined what is electrical network, we defined what is a loop, and जो भी चीजें required है, branch क्या होता है वो भी देखा हमने. And then we saw what is Kirchhoff's first law, that is junction law और current law भी बोलते हैं उसको. So today we are going to start with next law, and which is nothing but Kirchhoff's second law, जिसको हम लोग voltage law भी बोलते हैं, जिसको हम लोग loop law भी बोलते हैं basically. So let's see what is this Kirchhoff's second law. So Kirchhoff's second law, which is also called as loop law or voltage law or voltage law. Give me a minute. Okay, looks good. Right, just a minute because we are in trial phase of something, so I need to know how it works. Yeah, anyways, looks good. So idea is pretty simple. Let me first draw a circuit और फिर बाद में मैं बताता हूँ what is loop law. For example, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये एक रेजिस्टेंस है and then there is another resistance over here. So if we have a circuit, let us say we have resistances R1, R2, and if we are connecting it to battery, let's say we have two batteries as well. हमारे पास दो बैटरी है एक सर्किट में. इस सर्किट में EMF source E1 and EMF source E2. तो what Kirchhoff's loop law or voltage law or second law tells us is, देखो the idea is, अगर मेरे पास एक बैटरी भी होती है ना, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, तो द आइडिया इज सिंपल कि ये जो मेरे पास बैटरी है इसका जो ईएमएफ है, मतलब ईएमएफ है मतलब इस बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो एनर्जी स्टोर्ड कौन यूज करेगा? रेजिस्टेंस. मतलब दिस बैटरी विल बी यूज्ड टू सर्कुलेट अ करंट, राइट? करेक्ट, इजी. अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस होते इस सर्किट में तो दोनों रेजिस्टेंस एनर्जी यूज करते, करेक्ट, बिकॉज देयर इज अपोजिशन टू करंट. तो व्हाट वी कैन से इज the sum of all the potential differences, the sum of all the potential differences, मतलब sum of potential difference कैसे लिखते हो आप? I into R, that is potential difference, voltage, right? Plus the sum of all the sources of EMF in an electrical loop is equal to 0. मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाने जाऊं, दो बैटरी है, उसके पास एनर्जी है, एनर्जी कौन यूज करेगा? एनर्जी यूज तो कंपोनेंट से करेंगे. कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंसेस है, सिंपल, राइट? तो अगर एक बैटरी है तो फिर आप लिख सकते हो IR1 प्लस IR2 प्लस E इक्वल टू 0, राइट? अब ये E प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, वो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा. अगर दो बैटरी है तो मैं लिखूंगा IR1 प्लस IR2 माइनस या फिर प्लस E1 प्लस E2 इक्वल टू 0, राइट? वो प्लस कब लिखते हैं और माइनस कब लिखते हैं वो आगे आएगा साइन कन्वेंशन में. फिलहाल ये समझना जरूरी है. व्हाट इट टेल्स यू इज, इन अ क्लोज्ड
In a closed loop of electrical network, what Kirchhoff's second law tells us is, in a closed loop of electrical network, क्योंकि ये लूप है, closed है ये भी loop है, this is also closed, right? So in a closed loop of electrical network, the algebraic sum of potential differences या फिर potential drops, कहाँ potential drop होगा, जहां जहां resistance आएगा. The algebraic sum of the potential differences plus the algebraic sum of all the EMFs is equal to 0. जितना हमने EMF का सोर्स लगाया है, एक लगाया बैटरी होगा, 2 बैटरी लगाया होगा, 3 लगाया होगा, 4 लगाया होगा, ये सारा बैटरी का एनर्जी कौन यूज करेगा? कंपोनेंट यूज करेंगे. तो वही है, this statement means that only that whatever energy you have from the battery will be used by all the components in a closed loop of electrical network. बहुत सिंपल है, right? Now the thing is, statement is simple, but जब हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो सर्किट एनालिसिस मतलब क्या? बेसिकली हमको ये इक्वेशन बनाना है ना, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस E1 प्लस E2, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे. तो जब हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं तो हमको सर्किट को ट्रेस करना होता है. अब ट्रेस करने का मतलब क्या? लेट मी जस्ट टेक अ सर्किट एज एन एग्जाम्पल. मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, उसमें ये बैटरी है E1, right? Then I have a resistance over here R1, okay? Then I have another resistance R2 over here. Then I have another resistance over here, let us say R4. यहाँ पे एक ब्रांच है with resistance R3, something like this. Then यहाँ पे और एक बैटरी है, let us say E2. Then यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, let us say R5. तो R5, R3, ये E2, ये प्लस, ये माइनस, राइट? अब मुझे इस सर्किट का एनालिसिस करना है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब हमको देखना है कि जो बैटरीज कनेक्ट किए हैं वो करंट कौन सी डायरेक्शन में सर्कुलेट करेगा और कैसे सर्कुलेट करेगा. तो जो E1 बैटरी है दैट विल सर्कुलेट करंट, आपको पता है करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव. मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, राइट? Electrons will flow from negative terminal to positive terminal of a battery, so the current, conventional current, is from positive to negative. तो ये जो करंट सर्कुलेट करेगा that will be I1, करेक्ट? और E2 जो करंट सर्कुलेट करेगा that will be I2, है ना? Let me give some name to this. ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C है, ये D है, this is E and this is F, राइट? तो R2 में से करंट I1 आया और R4 में से करंट I2 आया, और B पॉइंट पे ये दोनों करंट कंबाइन हो गए बिकॉज B पॉइंट इज जंक्शन, और फिर करंट जाएगा ऐसे, एंड दिस इज कंबाइंड करंट, सो दिस इज I1 प्लस I2. मतलब R3 में से करंट जाएगा I1 प्लस I2. वापिस E पॉइंट पे करंट स्प्लिट हो गए, तो वापिस यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा I1 और नीचे की तरफ वापस आ जाएगा I2. मतलब R1 में से करंट जाएगा I1 और R5 में से करंट जाएगा I2. इतना कम से कम आपको पहले पता होना चाहिए. अब साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं. दो साइन कन्वेंशंस है. पहला, जब भी करंट एक रेजिस्टेंस से पास होता है, there is potential drop which is given by IR, ना? हमको पता है V is equal to IR, ओके?
जब भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब बैटरी का वोल्टेज यूज होगा, है ना। रेजिस्टेंस है तो ओवरकम करने में तो यूज होगा ना, तभी तो बेसिकली दैट्स व्हाई जब आप एक सेल लगाते हो सर्किट को रिमोट कंट्रोल में डालते होंगे, रिस्ट वॉच में डालते होंगे, वॉल क्लॉक में डालते होंगे सेल, तो कुछ टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है ना। क्यों? उसका एनर्जी यूज हो गया। क्यों यूज हुआ? अरे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में तो बैटरी यूज होगा ना। जब भी रेजिस्टेंस होगा वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होने वाला है। दैट इज द आइडिया। नाउ द थिंग इज, हम जब सर्किट को ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने का मतलब क्या? बेसिकली हमको अगर इक्वेशंस चाहिए, सर्किट का एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले एक डायरेक्शन फिक्स कर लो, है ना। मतलब कैसे कि आई कैन गो फ्रॉम ए टू बी, बी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू ए, या फिर आई कैन गो ए टू एफ, एफ टू ई, ई टू बी, बी टू ए। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग दोनों पॉसिबल है, राइट। और ये ट्रेसिंग लूप पे होता है। तो कितने लूप है यहाँ पे? ये हो गया लूप नंबर 1, ये हो गया लूप नंबर 2, और ये एक पूरा ही लूप है। आई कैन डायरेक्टली से देयर इज अ लूप ए सी डी एफ ए, ए से सी, सी से डी, डी से एफ एंड एफ से ए। दिस इज ऑल्सो लूप, राइट। करेक्ट, इसलिए इसको लूप लॉ बोला है, क्योंकि हम लूप पे अप्लाई करने वाले हैं इसको। बाय द वे, साइन कन्वेंशन क्या है? अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, इसमें से करंट जा रहा है I। इफ I am tracing in the direction of current, करंट का डायरेक्शन क्या है? A से B। इफ I am tracing in the direction of current, मतलब मैं A से B सर्किट को ट्रेस करूंगा। चॉइस है ना मेरे पास, आई कैन सी फ्रॉम ट्रेस फ्रॉम A से B और B टू A। मेरे ऊपर है, मैं A से B ट्रेस करूं या B से A ट्रेस करूं। So if I am tracing from A to B, the potential drop is always taken to be negative, right? तो easy चीज है, just a minute. So we have this choice of tracing. हमको A से B जाना है, B से A जाना है, हमारे ऊपर होता है। If you are tracing the circuit in the direction of current, then the potential drop across resistance is taken to be negative. If you are tracing in the direction opposite to the current, मतलब मैं B से A ट्रेस कर रहा हूं अगर सर्किट को, तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट। तो दिस इज साइन कन्वेंशन नंबर 1 while tracing a circuit. If the direction of tracing is same as that of conventional current, then the potential drop or difference across resistance is considered to be negative. And if you are tracing opposite to the direction of conventional current, then the potential drop is taken to be positive, right? सिंपल रूल है, ये पता होना चाहिए। और क्या क्या है हमारे पास सर्किट में? बैटरीज है। तो बैटरीज से तो बहुत इजी है। सपोज मैंने सी और डी पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दी ई, राइट। while tracing, if you are going from C to D, while tracing a circuit, if you are tracing from positive terminal of a battery to negative terminal of a battery, then EMF is taken to be negative, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, है ना। सी से डी देखो, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे गए ना हम लोग, देन EMF is taken to be negative, right? If we are tracing in direction, if we are tracing from D to C, so we are jumping from negative terminal to positive of a battery, then the EMF is taken to be positive. ये दो साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। If you know these two sign conventions, then definitely you will be able to solve any circuit. So let me just keep this because I will need this diagram and we will do analysis of this particular network.
तो वापस मैं समझा देता हूँ कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको क्या बताता है या फिर किरचॉफ लूप लॉ आपको क्या बताता है. So let me just get rid of this. Yeah. तो द आइडिया इज वेरी सिंपल. हमारे पास एक लूप है, उस लूप में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे दो रेजिस्टेंसेस हैं, कुछ बैटरीज मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ भी होगा. तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ टेल्स अस दैट summation of all the potential drop, दो रेजिस्टेंस होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, जब जब रेजिस्टेंस आएगा वहां वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब. तो इन सब का समेशन और जितने भी बैटरी हमने लगाई है उसका समेशन इज 0. The algebraic sum of potential drop across all the components and all the sources of EMF in a closed loop of an electrical network is 0. This is what Kirchhoff's second law tells you. Right. प्रॉब्लम ये था कि हम तो बोल रहे हैं अल्जेब्राइक सम, है ना, सब्ट्रैक्शन भी तो सम ही होता है बेसिकली. द थिंग इज, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने लिखा है आईआर, ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है. ये जो मैंने ईएमएफ लिखा है समेशन ओवर ई, ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है. तो इसके लिए देयर आर टू साइन कन्वेंशंस. हमको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करना है. सॉल्व करना है का क्या मतलब होता है ये भी समझ लो. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जैसे आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस है, कुछ बैटरीज है. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हो या फिर किसी बैटरी का ईएमएफ का वैल्यू नहीं दिया हो, तो उसका वैल्यू फाइंड करना मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करना. सबसे पहले ये समझना जरूरी है. बिकॉज आई मीन हम क्यों सीख रहे हैं ये पता नहीं होगा तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग. आवर टास्क इज टू फाइंड अननोन पैरामीटर. अननोन कैन बी ईएमएफ और इट कैन बी रेजिस्टेंस. तो ये सॉल्व करने के लिए, अननोन पैरामीटर निकालने के लिए, देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज साइन कन्वेंशंस. मैंने अभी बताया आपको कि साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करने हैं और साइन कन्वेंशन क्या है. सपोज मेरे पास एक ब्रांच है ए टू बी, वहां पे एक रेजिस्टेंस है आर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई. मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है कि जब मैं सर्किट को ट्रेस करूंगा, ट्रेस क्यों करना पड़ेगा, देखो क्या होता है, एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बराबर, बहुत सारे ब्रांचेस है, तो करंट तो हर ब्रांच से जाएगा, करेक्ट. मतलब करंट पूरे लूप में घूमने वाला है, नेटवर्क में घूमने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करंट के पीछे पीछे भागना है, राइट, है ना. या तो उसके पीछे भागो मतलब करंट की डायरेक्शन में ट्रेस करो, या तो उसको अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेस करो. तो we have two options. Any loop we can trace either clockwise or we can trace anti-clockwise. किसी भी इलेक्ट्रिकल लूप को हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहला, कंसिडर अ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग. सबसे पहली चीज ये है. नाउ इफ यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन मतलब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, right? If you're tracing in the direction of current, then the potential drop is taken to be negative. मतलब according to this diagram, अगर मैं A to B ट्रेस कर रहा हूं सर्किट को, करंट तो A से B है ही, मैं ट्रेस कर रहा हूं, है ना, मैं देख रहा हूं A से B और करंट भी A से B है. पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, IR. तो व्हेन यू आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव. That is first sign convention, right? Otherwise it is positive. मतलब अगर मैं सर्किट को, ब्रांच को B टू A ट्रेस कर रहा हूं, करंट A से B आ रहा है, मैं B से A देख रहा हूं, then the potential drop is taken to be positive. ये हो गया पहला साइन कन्वेंशन. दूसरा साइन कन्वेंशन, एक लूप में आपके पास सोर्स ऑफ ईएमएफ भी तो आ सकता है ना. यू कैन हैव अ बैटरी.
तो अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को ट्रेस कर रहे हो, मतलब यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम सी टू डी, इन दिस केस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो ईएमएफ इज टेकन टू बी माइनस। बहुत सिंपल है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो मतलब माइनस ईएमएफ लोगे, राइट? करेक्ट। देन अगर आप डी टू सी जा रहे हो, इफ यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन ईएमएफ इज टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट? ओके, इजी है। मैं एक फॉर द टाइम बिंग मैं एक लूप पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ये, एंड देन while writing notes we will go into depth details. For example मैं लूप लेता हूँ B C D E B, मतलब मैं ऐसा जा रहा हूँ, B से C गए, C से D गए, D से E गए, वापस आ गए B पे, राइट? करेक्ट। तो B से C जा रहा हूँ, what do I notice while going from B to C? That I am going in the direction opposite to current I2, right? मतलब मैं क्या लिखूंगा, plus I2 R4 by rule, because I am tracing this loop in direction opposite to conventional current. तो potential drop will be taken to be positive, right? अब मैं यहाँ पे आ गया, है ना, B से C हो गया, तो ये मुझे मिल गया BC ब्रांच से, राइट? अब मैं हूं CD ब्रांच में, तो CD ब्रांच में मैं क्या देख रहा हूँ, व्हाट आई सी इन CD ब्रांच, की बैटरी है, और बैटरी में मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा -E2, क्योंकि मैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव गया। और क्या है, और R5 भी है, राइट? R5 भी है। R5 में करंट कितना है, I2 अगेन, राइट? और मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हूं, यस, तो प्लस I2 R5, because I'm tracing in the direction opposite to conventional current. ये मुझे मिल गया CD ब्रांच से, करेक्ट। फिर मैं यहाँ पे आया DE ब्रांच, है ना, DE ब्रांच में देयर इज नथिंग, मैं जा कैसे रहा हूँ, B से C, C से D, D से E। DE ब्रांच में ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है। फिर मैं आया E से B, E से B में व्हाट आई सी, देयर इज रेजिस्टेंस R3, करेक्ट। और करंट कितना है, करंट कितना है, I1 प्लस I2, और अगेन आई एम इन डायरेक्शन अपोजिट टू करंट, तो मैं वापस लिखूंगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, हो गया लूप खत्म, वापस B पे आ गए, इक्वल टू 0, ऐसा लिख देना, राइट? तो ये मिल गया आपको वोल्टेज लॉ से इक्वेशन। डेफिनेटली हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें I2 है, इसमें भी I2 है, कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, इजी है। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज, मैं पहले तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डिफाइन कर दूंगा, देन वी विल राइट डाउन व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस, एंड देन वी विल ट्रेस दिस सर्किट, ये जो सर्किट है वी विल ट्रेस दैट। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, I want to define what is Kirchhoff's लूप लॉ और वोल्टेज लॉ और सेकेंड लॉ। बहुत सिंपल है ये। सो जैसे मैंने बताया, इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्लोज लूप होना ही चाहिए, ओके। सो इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द algebraic sum of what happened, the algebraic sum of potential differences या drops
I prefer this word drops. क्यों drops? क्योंकि पोटेंशियल जो बैटरी का होता है वो ड्रॉप होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी यूज हो रहा है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है. तो आई यूज दिस वर्ड ड्रॉप बेसिकली, राइट, फॉर all components plus the algebraic sum plus the algebraic sum of all EMFs is equal to 0, is equal to 0. ओके, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका. देयर इज नथिंग इन दिस स्टेटमेंट, सो इट्स pretty simple thing, right? So if you want to write down mathematically, what you can write is, आप लिख सकते हो ऐसा, summation IR plus summation E इक्वल टू 0. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया ऑफ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, राइट. नाउ वी शुड टॉक अबाउट साइन कन्वेंशंस, क्योंकि साइन कन्वेंशंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले बिफोर यू से एनीथिंग अबाउट व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव, सबसे पहले वाइल ट्रेसिंग अ सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि सर्किट में क्या हो रहा है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, हम देखेंगे सर्किट में ए से बी पॉइंट में क्या हुआ, बी से सी में क्या हुआ, सी से डी में क्या हुआ. उसको बोलते हैं ट्रेसिंग. सो वाइल ट्रेसिंग अ सर्किट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट, if the direction of tracing is same as that of, what happens here, is same as that of conventional current, then the potential drop or difference across the resistances is taken to be negative, otherwise it is positive. अदरवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेस करोगे, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट के, तो पॉजिटिव होगी. अदरवाइज इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट. तो ये पहला साइन कन्वेंशन. देन नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ईएमएफ. सो लेट्स नोट इट डाउन, राइट. तो रिगार्डिंग ईएमएफ इट इज इजी. अगर बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हो तो पॉजिटिव. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो EMF is positive if we trace या फिर traverse is better word here. If we traverse from negative terminal to the positive terminal inside the cell,
and it is negative, मतलब EMF is negative if we traverse, just a minute, yeah, if we traverse from the positive to the negative terminal, राइट, सिंपल है। ऐसा करते हैं अब, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं, यहाँ पे एक सर्किट ले लिया हमने, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल network as shown in figure below. Okay, अब as I told you earlier that यहाँ पे 3 लूप है, तो हम जैसा चाहे वैसा लूप लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। What do I mean by जैसा चाहे वैसा? तो I will take 3 loops, right? तो first of all let me take loop number 1, right? तो ये है लूप A, B, E, F, A, मतलब मैं ऊपर का दिखा रहा हूं आपको लूप नंबर 1, A, B, E, F, A, और उसको मैं ट्रेस कैसे कर रहा हूं? A से B, B से E, E से F और F से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। आई कैन ट्रेस इट इन अपोजिट डायरेक्शन एज वेल, मैं उल्टा जा सकता हूं, A to F, F to E, E to B, B to A, ऐसा भी जा सकता हूं मैं। इट इज अ पर्सनल चॉइस, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। इस लूप में व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम A to B, व्हाट आई सी इज करंट है I1, और करंट का डायरेक्शन क्या है? दिस इटसेल्फ, मतलब आई एम ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? तो व्हाट आई विल राइट इज माइनस I1 R2, because as I told you I went into the direction which is in the direction of conventional current. Okay, then फिर ये मिल गया A से B, B से E पे जाओगे तो B से E में R3 है और करंट है I1 प्लस I2, और B से E है डायरेक्शन करंट का भी, तो वापस से माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। E से F देयर इज नथिंग, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर R1 पे आ गए, अभी R1 पे भी आए तो भी करंट का डायरेक्शन इज स्टिल द सेम, तो वापस से माइनस I1 R1, सिर्फ B टू E जो ब्रांच थी, B ब्रांच जो थी, वहां पे करंट I1 प्लस I2 था, अदरवाइज इट इज जस्ट I1। फिर हम लोग आ गए बैटरी पे, बैटरी का EMF कितना है? E1, लेकिन मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं माइनस से प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस E1 इक्वल टू 0, करेक्ट हो गया किरचॉफ लॉ। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, E1 इक्वल टू, सारे नेगेटिव नेगेटिव को ले जाओ वहां पे, तो मिल जाएगा आपको I1 प्लस I2 इंटू R3, राइट, प्लस I1 कॉमन R1 प्लस R2, हो गया, बन गया एक इक्वेशन। तो दिस इज हाउ यू हैव ट्रेस्ड अ लूप
right? This is one example of tracing a loop. Okay, now I can actually take another loop. Let me take this diagram because I will need this on the next page. हमको लगने वाला है ये. Right. Let's take loop number 2. Okay, loop number 2. B, C, D, E, B. Okay, तो again as I told you, आप उल्टा भी ट्रेस कर सकते हो. It doesn't matter. सिर्फ आपको साइन कन्वेंशंस प्रॉपरली अप्लाई करने हैं. तो when I am going from B to C, what I see is I am tracing in the direction opposite to that of current. करंट I2 है, मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं प्लस लिखूंगा, प्लस I2R4. करेक्ट. फिर मैं आ गया सी डी ब्रांच में और मैं बैटरी को पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेस कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा -A2. राइट. फिर मैं आ गया R5 पे और R5 पे मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा प्लस I2R5. देन डी ब्रांच में देयर इज नथिंग. फिर मैं ई से बी जा रहा हूँ, ई से बी में जा रहा हूँ, तो वापस से मैं करंट को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा I1 plus I2 times of R3 equal to 0. Therefore, you will have E2 is equal to I1 plus I2 into R3 plus I2 कॉमन निकाल लोगे तो R4 plus R5 हो गया सेकेंड लूप. इफ यू विश आप तीसरा लूप भी ले सकते हो, एंड तीसरा लूप इज ACDFA, पूरा का पूरा वो भी ले सकते हैं. तो we'll take that also. So let me take loop number 3, which is basically, so I will leave it as an assignment for you. That's a better thing. तो ACDFA इसको ट्रेस करो. This is an assignment for you. Okay, this is an assignment for you. Right. तो what I want is कि जो हमने सीखा है उसका एप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, और एप्लीकेशन आता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स. That's why today we will be directly solving numericals related to what we have learned so far. Okay, so figure shows currents in part of electrical circuit. Find the value of x. आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? So it is pretty simple thing. How do we find x? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. What I am saying is, ओरली होता है पर लिखना तो पड़ेगा, तो लिखेंगे. What we see is O से करंट निकला है, यहां से 17 एम्पियर का करंट है, राइट? उसमें से 3 एम्पियर यहां चले गया, राइट? मतलब B पॉइंट से आगे द करंट इज 14, क्योंकि 17 में से 3 तो चले गया, तो करंट इज 14. करेक्ट.
राइट। फिर सी पॉइंट पे 2 एम्पियर और ऐड हो गया, तो 14 प्लस 2 16। 16 में से इस पर्टिकुलर जंक्शन पे 9 एम्पियर एक साइड गया, राइट। तो 16 माइनस 9 मतलब 7, तो x विल बी 7। खत्म। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली अप्लाई जंक्शन लॉ। ये जंक्शन लॉ ही अप्लाई किया हमने, वी हैव डन नथिंग बट अप्लाइड जंक्शन लॉ ओवर हियर, है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वी जस्ट हैव टू पुट दिस इन अ प्रॉपर वे। हमको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना पड़ेगा जो कुछ भी हमने अभी बोला है। तो यू कैन सी हाउ इजी इट इज। इट इज प्रिटी सिंपल थिंग, बहुत इजी है, एंड वी विल जस्ट solve this question and done. So what I can say is, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई कैन नॉट हेल्प इट, अभी है तो है, उन्होंने जंक्शन गलत दिखाए हैं। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम बाय माय ओन, बिकॉज दे हैव शोन थिंग्स लिटिल शिफ्टेड। तो ये ले लिया हमने एक स्ट्रेट लाइन, लेट मी जस्ट मूव इट लिटिल बिट, ओके। देन ये ऐसा है, ओके। और यहाँ से करंट जा रहा है बाहर की तरफ, यहाँ पे करंट आ रहा है अंदर की तरफ। सो दिस इज गोइंग आउटवर्ड्स, this is O point, this is junction B basically here. Then you have junction C here, let us say junction D over here, okay, जो प्रिंट नहीं हुआ, doesn't matter really। यहाँ पे करंट इनवर्ड आया, यहाँ पे करंट आउटवर्ड गया 3A, that is I2, this current is I1, राइट। तो बचा हुआ करंट जो था वो बन गया I3 यहाँ पे। फिर वापस से 2A विच इज I4 ये ऐड हो गया वापस, और यहाँ पे आ गया I5। फिर यहाँ पे आपका गया I7 विच इज 9 एम्पियर, ओके। और in this direction you have x equal to I6, right। तो this is the correct diagram। तो अभी तो बहुत इजी हो गया। So you can simply say, you can start writing, right, at junction B what is happening? At junction B current I1 will split, current I1 will split into I2 and I3, therefore I1 is equal to I2 plus I3, therefore I3 is equal to I1 minus I2। I1 आपको डायग्राम में दिया था, it was if I remember 17 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 17 माइनस I2 इज 3, तो ये आ गया आपका 14 एम्पियर ऑफ करंट, I3 इज 14 एम्पियर, राइट। एट जंक्शन C, right, I4 is combining with I3 to become I5, therefore I3 plus I4 is equal to I5, which is equal to, आपको पता है what is I3, अभी लिखा 14, I4 दिया है 2, मतलब I5 आ गया आपका 16 एम्पियर। सिंपल था, राइट। इट वाज प्रीटी सिंपल टास्क, कुछ नहीं है उसमें, ओके। देन
let me go back and take this diagram from here because we will need this. Yes, and at junction D क्या होगा, बस वही लिखना है अब. Okay, so what is happening at junction D? At junction D, IFI will split into I6 and I7. Therefore, IFI equal to I6 plus I7, and therefore I7 is equal to, हमको I6 फाइंड करना है, therefore I6 is equal to I5 minus I7, and I5 was 16 if I am not wrong, minus I7 is 9, so 16 minus 9 is 7 ampere. Therefore I6 is 7, which is nothing but value of x. मिल गया x, मिल गया. सिंपल था, yes, सिंपल था, right? So there is nothing in this question, easy था ये question. Okay, similarly you can solve next question, then next example. Two batteries of 7 volt and 13 volt with internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, बट आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ ड्रॉइंग डायग्राम. क्यों, मैं बताता हूँ, विच इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, मेरे पास जो बैटरी है, ओके, ये 7 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम, है ना. तो ये लोग कैसे लिखते हैं, 7 वोल्ट कॉमा 1 ओहम, है ना. आई डोंट लाइक इट. मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता हूं, मैं बैटरी दिखाता हूं, फिर मैं रेजिस्टेंस दिखाई देता हूं, और मैं इसको एक स्क्वायर डॉटेड बॉक्स में रिप्रेजेंट करता हूं. तो ये जो स्क्वायर डॉटेड बॉक्स है, व्हाट डज दैट मीन. ये जो स्क्वायर डॉटेड बॉक्स है, मतलब ये बैटरी है, और बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैटरी किसी मटेरियल से बना होगा. जैसे मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और मैंने ईएमएफ का फर्क बताया था. ईएमएफ अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट जिस भी मटेरियल से बैटरी बना है उसका खुद का रेजिस्टेंस है. तो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग बैटरी के बाजू में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं, और बैटरी और उस रेजिस्टेंस को एक डॉटेड बॉक्स में डाल देते हैं, which means that the battery has its own internal resistance. ऐसा करने से फायदा क्या होता है, समझेगा आपको आगे. तो ये है 1 ओहम, क्योंकि जब मैं लूप लॉ लगाऊंगा तो हम लोग भूल जाते हैं. 7 वोल्ट कॉमा 1 ओहम लिखा ना, वो 1 ओहम हम भूल जाते हैं. वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन दैट, वो गलत होगा फिर. इसलिए हम लोगों को, आई प्रिफर दिस वे, राइट. सो ये आ गया. देन व्हाट एल्स वी हैव इज, हमारे पास और क्या है, तो एक बैटरी है यहाँ पे नीचे, वापस से वही सीन. 13 वोल्ट का बैटरी है, उसका 2 ओहम का इंटरनल रेजिस्टेंस है. फिर मैं वापस इसको एक स्क्वायर डॉटेड बॉक्स में रखने वाला हूं. सो दिस इज 13 वोल्ट, दिस इज 2 ओहम, राइट. ईएमएफ ये E1 है, ये ईएमएफ E2 हुआ यहाँ पे, राइट. then we have a resistance finally over here, external resistance 12 ओहम का, राइट. तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें से डायग्राम बनाया मैंने. नाउ E1 जो बैटरी है, इट विल ड्राइव अ करंट. ये A पॉइंट ले लेता हूँ, ये C, ये E, ये
F, ये D एंड देन B। तो जो 7 वोल्ट का बैटरी है वो I1 करंट सर्कुलेट करेगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, करेक्ट, ओके। E2 जो बैटरी है वो I2 करंट सर्कुलेट करेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आई विल यूज डिफरेंट कलर्स टू शो करंट्स। तो दिस इज I1, I1, राइट, वापस से यहाँ पे ये I1 और ये I1। अब E2 बैटरी का जो करंट होगा, लेट मी शो बाय ग्रीन, ये I2, ओके। देन I1 और I2 पॉइंट C पे आके कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल गिव यू I1 प्लस I2 हियर। So the one in the blue is I1 plus I2, I1 plus I2, I1 plus I2। वापस से करंट का स्प्लिटिंग हो रहा है D पॉइंट पे। तो C पॉइंट पे I1 और I2 कंबाइन हुए, D पॉइंट पे वापस से I1 और I2 स्प्लिट हुए, करेक्ट, गुड। So this is what you should know at the first place, इतना पता होना चाहिए, गुड। ये क्वेश्चन आपको दिया है ऐसा, दो बैटरीज थे 7 और 13 वोल्ट, 1 और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था। इन दोनों बैटरीज को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया 12 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। तो you are supposed to find out current through each branch. This is little big task, and you are supposed to find out what is potential drop across 12 ohm resistance. So what I'll do is I'll give you time for today to think about this problem, क्योंकि ultimately हमको लगने वाला है आगे, and tomorrow I will be continuing from this part onwards. तो मैं ये question 9.2 से आगे कल continue करूँगा। So what we have done today is simple thing. We have defined what is Kirchhoff's law. We have seen what are sign conventions that we will be needing to apply Kirchhoff's law to loops. Then we did one numerical, and I have left two assignments for you. One is to apply loop law on the loop A, C, D, F, A here, and also I have left as an mental exercise just to think कि 9.2 कैसे solve करोगे। I'm not telling you to solve it, I'm just telling you how you will solve it. So कल थोड़ा ज़्यादा समझेगा because revision is required here, loop law पता होना चाहिए।